حضرت صدیق اکبر کی دوستی تھی، 18 سال عمر تھی، دوستی ہوئی۔ پہلے دوست کہتے تھے، جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو پھر دوست نہیں کہا سرکار۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر سرکار کے نکاح میں ہے، اور رشتے کے اعتبار سے حضرت فاروق اعظم حضور کے سسر ہیں، لیکن کبھی حضور کو داماد کہہ کر نہیں بلایا۔ حضرت امیر حمزہ چچا ہے، اور چچا ہونے کے باوجود کبھی حضور کو بھتیجا کہہ کر نہیں بلایا۔ حضرت عباس چچا ہے، لیکن سرکار کو کبھی بھتیجا کہہ کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی زوجہ ہے، لیکن کبھی سرکار کو شوہر کہہ کر۔ حضرت سیدہ کائنات حضور کی بیٹی ہے، لیکن کبھی باپ کہہ کر نہیں بلایا۔ یہ ساری رشتہ داریاں، تعلق، کوئی داماد ہے، سسر ہے، مولا علی داماد ہے، کبھی حضور کو سسر نہیں کہا۔ حضرت عثمان غنی طور داماد ہے، کبھی حضور کو سسر نہیں کہا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آئے، سسر نہیں کہا، چچا نہیں کہا، باپ نہیں کہا، داماد نہیں کہا، بلکہ یوں کہا، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ۔ کوئی چچا ہے، سسر ہے، داماد ہے، حضور کو بلانے کا انداز یہ کی تھا، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائے، وانظروا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائے۔ توجہ کیا آپ نے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو رشتہ دار تھے، کوئی چچا تھا، کوئی داماد تھا، کوئی سسر تھا، کوئی بیٹی تھی، وہ باپ نہ کہے، داماد نہ کہے، سسر نہ کہے، بھتیجا نہ کہے، تو آج ڈوب نہ مرے وہ ملا جو کہے میرے جیسے بشر ہیں۔ آج ڈوب نہیں مرنا چاہیے اس ملا کو جو کہے کہ بڑے بھائی کی طرح ہے۔ وہاں تو حضور نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت علی نے سرکار کو کبھی بھائی نہیں کہا۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں، بریلی کے تاجدار نے جو تاج دیا، اور ویل چیئر والے بابے نے جو ہمیں کھول کے پلایا، جو بریلی کی بستی سے چلا تھا، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر بہتر سے تعظیم بھی کرتا ہے، نجدی تو بہتر سے۔ فرمایا ہم تو تعظیم کرتے ہیں حضور پر فدا ہو کر، اور یہ نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مقتدر کے ساتھ۔ وہ ساری زندگی ویل چیئر والا بابا یہی قسم کرتا ہے۔ پریشان ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں بیان کیا کروں، کیا تقریر کروں، کیا بات کروں آپ سے، کیا لفظ بولوں۔ میں رات قصور میں تقریر کر رہا تھا جب مجھے خبر ملی، اس کے بعد میں وہاں بات نہیں کر سکا۔ اہل سنت یتیم ہو گئے، کروڑوں سنیوں کے دلوں کی دھڑکن بند ہوئی ہے، ایک بندہ نہیں گیا، پوری تحریک ختم ہوئی ہے۔ حضرات کرام قدر، جب ہم تعظیم کی بات کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر مصلی امامت پر ہیں، اور حضور دو قبیلوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ کاشان اقدس میں موجود نہیں تھے۔ جیسے ہی نماز کھڑی ہوئی، ایک یا دو رکعتیں ہوئی تھی، سرکار تشریف لے آئے، مسجد میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام نے تصفیق کے ذریعے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر حضرت صدیق اکبر کو متوجہ کیا کہ سرکار آ گئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ترچھی نگاہ سے دیکھا کہ حضور آئے ہیں، تو نماز پڑھاتے پڑھاتے نماز توڑی نہیں، مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ حضور نے اشارہ کیا، ابو بکر کھڑے رہو اور اقیموا صلاتکم، اپنی نماز کو پورا کرو۔ لیکن حضرت صدیق اکبر مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ سرکار آگے بڑھے، جو ابو بکر نے پڑھا دی تھی وہ ہو گئی، جو رہ گئی تھی وہ میرے نبی نے پڑھائی۔ نماز سے سلام پھیرا تو سلام پھیر کر فرمایا، ابو بکر جب میں نے تم سے کہا تھا اپنی جگہ پر کھڑے ہو، نماز پڑھاؤ، تو تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ جملہ سنیے صدیق اکبر کا، اپنے جیسے بشر کہنے والا ملا ہو ہے، صدیق اکبر کے وارث ہو ہے۔ آپ نے فرمایا، حضور رب کعبہ کی قسم، آپ پیچھے کھڑا ہو، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر یہ گوارہ نہیں کر سکتا، اگر آپ موجود ہوں گے تو نماز کے دوران مصلی چھوڑنا
मुसल्ले पर, उस मुसल्ले पर आकर खड़े हो, हम आपके पीछे हाथ बांध कर इत्तेदाम में खड़े होंगे। और जब मैं अदब रसूल की बात कर रहा हूँ, जो ताज़ीम रसूल की बात कर रहा हूँ हज़रात, तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं, जब हुजूर की सवारी दाखिल हुई मदीना तैयबा में, हिजरत करके सरकार आए, तो हाथ बांध कर सहाबा ने कहा, बड़े बड़े उमरा अंसार मदीना, हाथ बांध कर कहा, आप हमारे काशाने में तशरीफ लाएं, हमारे घर में आए, हमारे घर में कदम रंजा फरमाए, हुजूर हमें एजाज बख्शे मेजबानी का। तो सरकार ने फरमाया, हाज़िही नाक़तु माक़ूर मिनल्लाह, ये मेरी ऊँटनी जिस पर मैं बैठा हूँ, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, जहाँ ये जाकर खुद रुकेगी अल्लाह के हुक्म से, वहाँ मैं ठहरूंगा। वो ऊँटनी जाकर रुकी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने सरकार वहाँ कदम रंजा फरमाते हैं। इधर हाल ये था, 2 मंजिला मकान था हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का, कच्ची छत थी, कच्ची मिट्टी का बना हुआ मकान था। बालाई मंजिल पर खुद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, उनकी आलिया थी, निचली मंजिल पर सरकार थे। जब रात का वक्त आया तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी अपनी बीवी से कहने लगे, जब हम चलते होंगे तो नीचे नबियों के इमाम हैं, तो मिट्टी कच्ची छत की उन पर कहीं गिरती ना हो, हुजूर के दामन पर वो मिट्टी ना गिरती हो कहीं। आलिया ने कहा, ये तो हमने सोचा ही नहीं, तो आप क्या करें? सारी रात घर के कोने में खड़े होकर गुजार दी। घर की बालाई मंजिल पर चले नहीं कि कहीं मिट्टी वजूद मुस्तफा पर गिर ना जाए, दामन मुस्तफा पर कोई मिट्टी का जर्रा ना गिर जाए। सारी रात यूं झांक कर खड़े होकर गुजारी। सुबह बारगाह रसूल में हाजिर हुए तो देखिए बात क्या की, अपनी बड़ाई बयान नहीं की, कहा हुजूर आप तो नबियों के इमाम हैं, आपके पास तो जिब्रील आते हैं, तो हुजूर जिब्रील आते हैं तो हम दरमियान में क्या कर रहे हैं? निचली मंजिल पर आप हैं, पलाई पर हम हैं, उधर से जिब्रील आते हैं, हम दरमियान में हैं। हुजूर अगर आप महसूस ना फरमाए हुजूर, तो आप पलाई मंजिल पर तशरीफ ले जाएं। ये नहीं बताया कि रात जाग कर गुजारी है, मिट्टी आपके वजूद पर गिर ना जाए। सरकार ने फरमाया वक्त आते हैं मुलाकात के लिए, इसलिए मैं निचली मंजिल पर ठहरूंगा, यहाँ आसानी होती है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी अहलिया चली गई, लेकिन अगली रात क्या हुआ सुनिए। एक रात तो यूं जाग कर गुजारी, दूसरी रात क्या हुआ, पानी का घड़ा टूट गया, पानी बालाई मंजिल पर बह गया। अब डर ये था कि कच्ची छत है, पानी निकल कर कहीं निचली मंजिल पर चला न जाए। एक कंबल था, सर्दियों की ठठरती हुई रात थी, उस कंबल पर पानी पे डाल दिया, कंबल के अंदर सारा पानी जज्ब किया कि पानी हुजूर के वजूद पर कोई पानी का कतरा न गिरे, सरकार के आराम में खलल आएगा। उस गीले कंबल को साइड पर रखकर सर्दियों की ठठरती हुई रात में रात जाग कर गुजारी। ये अदब जब किया तो मेरे नबी ने एहसास बख्शा, फरमाया है अबू अय्यूब अंसारी तू तो मेजबान रसूल है, आज तक मेजबानी तो बड़े बड़े सहाबा ने मेरे नबी की है, लेकिन मेजबान रसूल का लफ्ज बोला जाए तो तसव्वुर एक ही ज़ात का आता है, वो जिसने ताज़ीम रसूल का नक्शा खींचा था, जिस पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तवज्जो है हज़रत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा है, तवज्जो है ना आपकी। बाप सगा बाप मिलने के लिए आते हैं, बेटी कहती है अब्बा जान जरा ठहर जाइए, अभी कलमा नहीं पढ़ा अबू सुफियान ने, मुसलमान नहीं हुए, बाद में मुसलमान हो गए, उस वक्त मुसलमान नहीं है, मुशरिक है, कलमा नहीं पढ़ा। तो बेटी कहती है अब्बा जान आप ठहर जाए। पूछा क्यों? कहा पहले मैं बिस्तर उठा लूं। बेटी मैं इस काबिल नहीं कि बिस्तर पर बैठूं, या ये बिस्तर इस काबिल नहीं कि मैं इस पर बैठूं, कोई उम्दा बिस्तर लाओगी, कोई नर्म उदास बिस्तर होगा, कोई रेशम का बना हुआ बिस्तर होगा जिस पर मैं बैठूंगा, क्योंकि बात हूं ना मक्के से मदीने तो मैं मिलने आया हूं, सरकार से मुलाकात करनी थी एक मुआहदे के हवाले से, तो तुम शायद कोई उम्दा बिस्तर लाने लगी हो। अगर ये बात नहीं तो फिर इसका मतलब है कि मैं इस काबिल नहीं कि इस बिस्तर पर बैठूं। काबा जान मैं आपके लिए कोई उम्दा बिस्तर नहीं लाने लगी, मैं कोई रेशम का नर्म उदास बिस्तर तलाश करके नहीं लाने लगी, बिस्तर इसलिए उठाया है कि आप सगे बाप हैं, बच्चे
لیکن آپ اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں. کہا بیٹی کیوں؟ باپ دور سے آئے تو بیٹی کو آنکھیں بچھاتی ہے, باپ کا استقبال کرتی ہے, میں اس قابل نہیں کہ اس بستر پر بیٹھوں. تو بیٹی نے کہا ابا جان اس لیے کہ آپ مشرک ہیں, اور مشرکین کے بارے میں قرآن کہتا ہے مشرکین نجس ہیں, اور میں یہ نہیں چاہتی میرے نبی کا پاک بستر ہو, میرے نبی کا طیب و طاہر بستر ہو, جس پر میرے نبی آرام فرمائے اس پر سگا پاک کیوں نہ ہو, لیکن مشرک ہو اور نبی کے پاک بستر پر بیٹھ جائے, میں یہ گوارا نہیں کر سکتی. اس لیے بستر اٹھایا ہے کہ آپ رسول اللہ کے پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. وہ جو قرآن نے کہا آٹھ محبت انسان کی فطرتی محبت ہے, ماں باپ کی محبت, خاندان کی محبت, اولاد کی محبت, قبیلے کی محبت, اور کاروبار کی محبت, مکانات کی محبت, مال کی محبت, لیکن فرمایا پکا مومن اور کامل مومن وہ ہے جہاں اللہ اس کے رسول کی محبت کی بات آ جائے. آٹھوں محبتوں پر اللہ اس کے رسول کی محبت پر حدیبیہ کا مقام ہے, توجہ ہے, اس حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ ہیں. کتنے؟ 1500 صحابہ عمرہ کرنے آئے ہیں. حضرت عمر بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ نہیں پڑھا بھی, کفار کی طرف تھے مکہ کے اندر. مکہ کے کافروں نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا, آپ جائیں خفیہ طور پر جاسوسی کریں. کتنے ہیں؟ اسلحہ کتنا ہے؟ سواریاں کتنی ہیں؟ کیفیت کیا ہے؟ لڑے کہ اگر ہم تو کیا ہوگا؟ اگر ان کا خون بہائے جیتے گا کون؟ پلہ کس کا بھاری ہے؟ جا کر ذرا جاسوسی کر کے آئے. حضرت عمر بن مسعود گئے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, چھپ کر دیکھا سارا, واپس آ کر اب جو بیان کیا وہ سنیے. کہنے لگے سنو, اگر تم ان سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ ارادہ ترک کر دو. کہا کیوں نہ لڑے؟ اسلحہ ہے. کہا اسلحہ وہ لائے نہیں کیونکہ وہ لڑنے نہیں آئے, وہ عمرہ کرنے آئے ہیں. ان کی تعداد بھی 1500 ہے, اور وہ اپنے وطن میں بھی نہیں ہے, اور وہ مسلح ہو کر بھی نہیں آئے, نہ جنگ کی تیاری اور نیت اور ارادے سے آئے ہیں, وہ صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں. لیکن اگر تم ان کے ساتھ لڑے تو تم شکست کھا جاؤ گے. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے وہ نبی جب وضو کرتے ہیں صحابہ اپنے ہاتھوں کو یوں نیچے رکھتے ہیں, اور اس نبی کے جسم میں اپنے سے مست ہونے والا پانی زمین پر نہیں گرتا, بلکہ وہ صحابہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اور جس صحابی کو پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کا گیلا ہاتھ پکڑ کر فَتَلَقَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَعَلَى جِسْمِهِ, کوئی اس کو اپنے چہرے پر ملتا ہے, کوئی جسم پر ملتا ہے. وہ تو حضور کا غسالہ استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, اور جب سرکار اپنے بالوں کا خط بنواتے ہیں تو یوں صحابہ ہاتھ نیچے رکھ کر بیٹھتے ہیں, ان بالوں کو تقسیم کرتے ہیں, کوئی اپنی ٹوپی میں رکھتا ہے, کوئی اپنے پاس سینے سے لگا کر رکھتا ہے. اور نبی جب اپنا ہاتھ پھینکتے ہیں تو صحابہ یوں نیچے ہاتھ رکھتے ہیں, اپنے جسم پر اور چہروں پر ملتے ہیں. حضرت عمر بن مسعود نے کہا اے کافروں کے سرداروں, اگر تم اس نبی سے لڑنا چاہتے ہو اپنا ارادہ ترک کر دو. جو صحابہ اپنے نبی کے وضو کا پانی کا قطرہ زمین پر نہ گرنے دے, وہ اپنے نبی کے جسم کا خون کا قطرہ کیسے گرنے دے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا, اپنی آواز کو حضور کی بارگاہ میں اونچا نہ کرنا. اور علماء نے لکھا یہ ادب آج بھی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ تو آہستہ آواز سے ہدیہ سلام پیش کرو. وہاں آج بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا, آواز کو بلند نہ کرنا. اگر ہو گئی تو قرآن کہتا ہے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آواز بھی اونچی ہو گئی تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. فرمایا میرے نبی کو یوں نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. وہ بڑے بھائی کی طرح نہیں ہے, وہ تمہارے جیسے بشر نہیں ہے, وہ
नबियों का इमाम और खातमुन नबीयीन है। उनको इस तरह न पुकारना जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, और उनके दरवाजे पर खड़े होकर इस तरह आवाज भी न देना जिस तरह किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर आवाज देते हो। ये बारगाह मुस्तफा का अदब है जो खुद खुदा सिखाया वाले। फरमाया मेरे नबी को नाम लेकर न पुकारना, आवाज ऊंची न करना, तुम्हारे अमाल बर्बाद न हो जाए। जब कुरान की आयत उतरी तो हजरत फारूक आज़म इतनी आहिस्ता आवाज से बात करते कि पूछना पड़ता क्या कह रहे हैं। फरमाया बारगाह रसूल में हूं, कहीं अमाल बर्बाद ना हो जाए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत के नज़ूल के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आकर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कसम उठाता हूं आज के बाद ऊंची आवाज से आपसे बात नहीं करूंगा। हालांकि पहले भी नहीं करते थे, कहा आज के बाद आवाज को बस कर दूंगा। और एक कमाल सहाबी हजरत साबित बिन कैस, उनकी आवाज वैसे ही बड़ी बुलंद थी। जब कुरान की आयत उतरी तो घर के अंदर बंद कर दिया, कैद कर दिया, रोते थे। जब चंद दिन हुजूर ने देखा कि आए नहीं तो पूछा साबित किधर है, बीमार है या वैसे मदीना छोड़ गए हैं। सहाबा ने कहा हुजूर माजरा ये है, कुरान की आयत उतरी है। वो कहते हैं आयत उतरी मेरे बारे में है तो मेरे तो सारे अमाल बर्बाद हो गए, क्योंकि मेरी आवाज कुदरती तौर पर ऊंची है और मैं ऊंचा बोलता हूं तो मेरे तो सारे अमाल तारक हो गए, बर्बाद हो गए। हुजूर ने फरमाया बुलाओ साबित को। हजरत साबित बिन कैस हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया साबित क्यों परेशान होगा। हुजूर मेरी आवाज बुलंद है और लगता है कि आयत उतरी मेरे बारे में है, मेरे तो सारे अमाल बर्बाद हो गए। फरमाया नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं, वो जो तौहीन की नियत से ऊंची आवाज से बोलते हैं उनके बारे में कुरान की आयत उतरी है। और तुम्हारा अदब, तुम्हारी ताज़ीम। फरमाया तीन खुशखबरी ये सुना तुम साबित, तुम्हें एक जितना अरसा जिंदा रहोगे लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अदब रसूल करता है, मौत फिर उसको जुमे की रात को आती है, मौत उसको जुमे की रात को आती है। कहा तुम लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। दूसरी बात फरमाए तुम्हें रब शहादत की मौत अता करेगा। तीसरी बात फरमाए तुम जन्नत में मेरे साथ जाओगे। हज़रत साबित बिन कैस कहते हैं ताज़ीम रसूल और अदब रसूल का सदका मैं बाजार से गुजरता था तो लोग उठकर खड़े हो जाते, मुझे देख कर कहते थे वो क्या है जन्नती जिसको हुजूर ने जन्नती कहा है। साबित बिन कैस जिसको रसूलुल्लाह की दुआओं का तोहफा मिला था, कहा सारी जिंदगी आसूदगी में गुजारी, सेहत में गुजारी, बाल भी था, मकान भी था, हुजूर की दुआओं का असर था। फरमाया फिर जब शहादत की मौत का वक्त आया तो फिर खत्म नबूवत के लिए सिद्दीक अकबर ने जमे यमामा की तरफ लश्कर भेजा 12,000 का। फरमाया कोई बदरी है या उहद वाला है, सारे निकलो हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने के लिए। तो फिर खत्म नबूवत के पहरेदार निकले, हजरत साबित बिन कैस भी इनमें शामिल थे। और साबित बिन कैस का कमाल यह था जिस वक्त सहाबाए किराम की पेशकदमी रुक गई और सहाबाए किराम रुक गए तो हजरत साबित बिन कैस ने कहा ये सूरत हाल हमने हुजूर के दौर में तो नहीं देखी, आज क्यों रुकते हो, आगे बढ़ो, सीने तानो, अपनी गर्दनें कटवा दो, हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा दो। और ये बात करके सबसे पहले साबित बिन कैस मुसलमान के साथ के सामने यूं सीना तान कर खड़े हो गए जिस तरह हमारा बाबा वक्त के नामों के सामने 103 बुखार के अंदर जिस तरह इस्लामाबाद की सड़कों पर वो अकेला बैठकर खत्म नबूवत की बात कर रहा था, वो कोई नई बात नहीं थी। सहाबा ने गैरत का ताज़िया किया था, सीना तान कर साबित बिन कैस खड़े हुए, तीर लगा और साबित बिन कैस ने जामे शहादत भी नोश किया। सहाबा कहते हैं तीसरी खुशखबरी हमने आंखों से तो नहीं देखी लेकिन यकीन है कि वो जन्नती है। क्यों? कहा शहादत भी है, सहाबी भी है, लेकिन हम कन्फर्म जन्नत इसलिए कह रहे हैं कि नबी की जुबान से निकला है और सरकार ने फरमाया था साबित तू जन्नती है। ये ताज़ीम रसूल का दर्स जो सदियों पहले सहाबा ने दिया, खुद रसूलुल्लाह ने समझाया कि बारगाह रसूल का अदब क्या है। सदियों बाद अगर किसी मर्द कलंदर ने दोबारा इस दर्स को जिंदा किया और सीनों में बिठाया तो उसको खादिम हुसैन मिस्री कहा जाता है।
कहते हमें बाबे की समझ नहीं आती। हमने अपनी जिंदगी में लोगों को मुखालफत करते हुए देखा और उनको ये कहते हुए सुना कि हमें इस व्हीलचेयर वाले बाबे की समझ नहीं आती, रोज धरने देता है, रोज जुलूस निकालता है। मैं कहता हूँ अब जब कंजर खाने खुलेंगे, शराब के परमिट जब आम होंगे, अब जब चोर रास्तों से हुजूर की खत्म नबूवत पर डाका डाला जाएगा, अब जब तौहीन रिसालत के कानून में नकबजनी होगी, तो फिर तुमसे पूछूंगा जब मुंह छुपा कर रोगे और कहोगे काश आज खातिम रिजवी जिंदा होता, आज वो व्हीलचेयर वाला बाबा जिंदा होता, आज किसी की जुर्रत न होती वो खत्म नबूवत पर डाका डालता, किसी की जुर्रत न होती वो तौहीन रिसालत के कानून पर नकबजनी करता। जो मुल्क के अंदर कंजर खाने न खुलते, हम क्यों रोते हैं? हमारे दिल क्यों जख्मी? हज़रात आप महसूस नहीं कर रहे इस बात को? आप महसूस करें आज कादियानियत के ऐवानों में जश्न मनाया जा रहा है। वो खुश क्यों है आज? इसलिए कि उनके कीलों में, उनके ताबूतों में कील ठोके थे व्हीलचेयर वाले बाबे ने, उनकी जुबानों को लगाम दी थी खातिम रिजवी ने। मुल्क के अंदर लिबरलिज्म और रोशन ख्यालों की जुबानों को गुत्ती से खींचने वाला वो बाबा था। अब आप देखेंगे सूरत-ए-हाल को मुल्क के अंदर जो बनेगा, तो फिर वो लोग जो सारी जिंदगी उस बाबे की मुखालफत करते रहे, वो मुंह छुपा कर रोएंगे, तलाश करेंगे सब रद्दे कलंदर। लेकिन मैं मिंबर रसूल पर बैठ कर कहता हूँ, अब सिर्फ रोना मुकद्दर है, सदियां गुजर जाएगी, अब दूसरा खातिम रिजवी हमें नजर तवज्जो है। हज़रत फारूक आज़म शाम की तरफ गए, शाम से गुजर कर जाना था बैतुल मक़दस, तवज्जो है ना? ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी खड़े थे वहां। उमर आए तो हम बैतुल मक़दस की चाबियां देंगे। हज़रत फारूक आज़म जब फलस्तीन की तरफ जाते हुए शाम की सरहद पर पहुंचे, तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने आपको रोका और आपसे रोक कर कहा, उमर आप जा तो रहे हैं, आपने लिबास देखा है अपना? इसमें रंगीन कपड़ों के पैमद लगे हुए हैं, ये फटा हुआ है जगह जगह से, और आगे सूरत-ए-हाल ये है कि ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी आपके चेहरे की एक झलक देखने के लिए खड़े हैं और वो कहते हैं हम भी देखें कौन उमर है जिसका नाम सुनकर आलम में कुफर कांप जाता है, जिसने बातिल के वानों में लज्जत तारी कर रखा है। जिस तरह फारूकी मिशन के वारिस हजरत खादिम हुसैन रिजवी ने बातिल के वानों पर लज्जत तारी कर रखा था, तो हम देखें तो सही उस उमर को जिसकी वजह से काफिरों की नींदें हराम है, बातिल के वालों पर लज्जत तारी है, लोग नाम सुनकर कांप जाते हैं। ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी खड़े हैं, तो उमर लिबास बदल लें, कपड़े बदल लें। हजरत फारूक आज़म ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का हाथ पकड़ा, साइड पर ले गए, एक जुमला कहा, कोई जुमला बाबा सारी जिंदगी हमें समझाता रहा। अब अगर समझ आएगी तो क्या है हज़रात? हमारे आले सुन्नत के अंदर ये बड़ा मसला है, जब कोई शख्सियत दुनिया से चली जाए तो हम उसकी कदर करते हैं, फिर उसके गुण गाते हैं। उसकी जिंदगी में हमने उनके पैगाम को न समझा, उनके मिशन को न समझा। उस शख्स ने कभी अपनी जात का नारा नहीं लगवाया, अपने नाम का नारा नहीं लगवाया। हजरत फारूक आज़म ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का हाथ पकड़कर साइड पर ले जाकर कहा, अबू उबैदा तू कहता है मैं फटा हुआ लिबास उतार कर कोई शहाना लिबास, कोई जुब्बा पहन लूं क्योंकि ईसाइयों के पादरी मुझे देखने के लिए खड़े हैं। अबू उबैदा ये बात तू भी याद रख और तेरी निस्बत से रसूलुल्लाह का हर गुलाम और क़यामत तक हर उम्मत इस बात को याद रखे, उमर की इज्जत कपड़ों से नहीं है, उमर की इज्जत रसूलुल्लाह की गुलामी की इज्जत। उमर को इज्जत उमर के लिबास ने नहीं दी, उमर को इज्जत हुजूर की गुलामी ने दी है, उमर को इज्जत हुजूर की निस्बत ने दी है। हमने देखा है उस बंदे ने कभी ठाट बाट वाला लिबास नहीं पहना, सफेद कुर्ता था उसका, सादी दस्तार थी, कोई भड़कीली जर्क पर दस्तार नहीं थी, उसके कोई शहाना लिबास नहीं था, सादा सीधे चेयर पर बैठता था। लेकिन कभी मजमे में चला जाता, लाखों लोग अपनी आंखें भी बिछाते, देख भी बिछाते, और अगर सलाम करने का मौका न मिलता तो व्हीलचेयर के टायरों को लोग गुस्सा देते थे, गाड़ी की स्क्रीन को गुस्से देते थे, गाड़ी की टायरों को चूमते थे। उस बंदे ने यही तो समझाया है, तुम्हें इज्जत लिबास से नहीं मिलेगी, इज्जत कपड़ों से नहीं मिलेगी, इज्जत हुजूर से वफा करोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हें वकार मिलेगा हुजूर के साथ मोहब्बत की वजह से, तुम्हें इज्जत मिलेगी हुजूर के
बस एक ही बात करता था, वो कहता था जहां जाओ बस एक ही बात करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाओ। वो कहता है जहां जाओ हुजूर की इज्जत और नामूस की बात करो, क्योंकि इज्जत कपड़ों में नहीं है। तो आज आपने देख लिया, जिस शख्स ने सारी जिंदगी अपने लिबास पर तवज्जो नहीं दी, सादगी में गुजारी, हुजूर से वफा की, रात से लेकर इस वक्त तक हजारों लोगों का हुजूम सड़क पर चला है। लोग झाड़े मार कर होते हैं, दाढ़ी मुंडे हुए, पैंट शर्ट के अंदर मलबूस बर्गर फैमिली के लड़कों को भी हमने चीखे मारकर झाड़े मारकर रोता हुआ देखा। देवबंदी भी रो रहे हैं, वहाबी रोते हैं। वो कहते हैं अगर बातिल के इमामों के सामने कोई सीना तान कर खड़ा हुआ और आज सदियों बाद अगर किसी ने रहमत का दर्स दिया था और लोगों के अंदर अमीयत का जज्बा पैदा किया था और जिसने फिक्र इकबाल को समझाया, इकबाल के शाहीनों को जगाया, वो सुन्नियों का मर्दे कलंदर कादिर हुसैन रिजवी था। कल जनाजा होगा उस मर्दे कलंदर का, 10 बजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर जनाजा होगा और वो मर्दे कलंदर मनोमट्टी तले चला जाएगा। फिर ज़माना ढूंढेगा, कंजर खाने खुलेंगे, मुंह छुपा कर मैं भी रोऊंगा, आप भी रोएंगे और तलाश करेंगे कि खादिम रिजवी और होता। आज लिबरलिज्म तबका कादियानियत बगले बजा रहे हैं, इसलिए कि खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी जात की बात नहीं की, उनकी जुबानों को लगाम दी। आज रब ने कितनी इज्जत दी। जुम्मे का दिन है, जुम्मे की रात को मौत नसीब हुई, हजारों लोग इकट्ठे वहां रो रहे हैं और रोना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। मैंने ये नारा मिंबर से कभी नहीं लिखवाया ताकि आप ये न कहें कि इसका इस जमात से ताल्लुक और इस जमात से ताल्लुक नहीं। आज लगवाऊंगा 2-3 मिनट रज के बाजू उठाकर मस्जिद के दरो दीवार पूछे और बाहर गली तक आवाज जाए कि जब रूह मेरी पैरहन खाकी से निकली रोजे से आवाज आई, वो मेरा फकीर आया। पता चले आज मर्दे कलंदर क्या है। लब्बैक